یوم پاکستان پر پاکستان کی یادگار کے اطراف خاردار تاروں کا جال، بیریئرز بھی لگ گئے۔ مینار کو دور سے دیکھو، 20 میٹر کا علاقہ نو گو ایریا، عام شہریوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ٹریفک پلان ترتیب دے دیا گیا، 6 ڈی ایس پیز، 23 انسپیکٹرز اور 241 وارڈنز ڈیوٹی دیں گے۔ محکمہ صحت کی سستی، 1.5 برس بعد بھی ڈاکٹرز کو کوالیفیکیشن الاؤنس نہ مل سکا۔ محکمے نے بوجھ اپنے سر سے اتار کر میڈیکل کالجز، ہسپتالوں اور صحت کے دیگر اداروں کے سربراہان کو الاؤنس دینے کا اختیار سونپ دیا۔ وحدت کالونی گونا کو مسائل کا شکار، رہائش پذیر سرکاری ملازمین صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات کو ترس گئے۔ انتظامیہ کی تمام تر توجہ افسران کی رہائشی کالونی GOR1 پر مرکوز، مکینوں کا شکوہ۔ ایک اور گھریلو ملازمہ وحشیانہ تشدد کا شکار، سندر کے رہائشی ناصر کا 14 سالہ نجمہ پر تشدد۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ملازمہ کے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ سندر پولیس نے تشدد کرنے والے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ نالج پارک میں ایک اور یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا عرفہ کریم سینٹر میں IT ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے خطاب۔ رواں برس ہونہار طلباء میں مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان۔ لیک سٹی میں سال کے بہترین ملازمین میں ایوارڈز تقسیم۔ فارسٹ کیفے کا افتتاح، CEO لیک سٹی گوہر اعجاز نے انعامات تقسیم کیے۔ لیک سٹی مال کا منصوبہ زیر تعمیر، زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں سے مزین ہوگا، گوہر اعجاز کا خطاب۔ ہائی کورٹ کے 8 نئے ججز کی حلف برداری، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حلف لیا۔ جسٹس شاہ خاور، جسٹس ظفر اللہ خاقوانی، جسٹس جیمز جوزف، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس شمس محمود دورانی، جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس سکندر ذوالقرنین، جسٹس فیصل زمان نے حلف اٹھایا۔ ادھر جسٹس جواد خواجہ کا زیر تربیت سول ججز کا خطاب۔ 23 مارچ کو لاہور میں نظریہ پاکستان مارچ کیا جائے گا۔ GPO چوک میں جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید کی ہائی کورٹ بار کے وکلاء کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بغیر پروٹوکول ڈیفنس میں لیگی رہنما چودھری سعود مجید کی رہائش گاہ پر آمد۔ چودھری عبدالمجید کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت خواجہ عمران نذیر کا ماڈل ٹاؤن ہسپتال کا دورہ، انسداد پولیو مہم کا افتتاح اور انتظامی امور کا جائزہ۔ EDO ہیلتھ کو 2 روز میں ڈینگی ڈائگنوسٹک مشین ٹھیک کرانے کی ہدایت۔ ادھر MNA پرویز ملک نے کوٹ اسٹریٹ روڈ روئرمال پر ڈیٹا ٹیک ٹیکنالوجی ہاؤس کا افتتاح کر دیا۔ ایئر ایگل پرائیویٹ نے ایویشن اکیڈمی کا افتتاح کر دیا۔ کمرشل اور پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کی تربیت کے علاوہ دیگر کورسز کرائے جائیں گے۔ ماریشس ہائی کمشنر محمد رشید ٹریوو کی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال سے ملاقات، جبکہ صدر اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی جانب سے ماریشس ہائی کمشنر کے اعزاز میں ظہرانہ۔ تاجک سفیر شیرالی ایس جانا نے فیملی کے ہمراہ واہگہ بارڈر پر رینجرز کے جوانوں کی پریڈ دیکھی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے ورلڈ واٹر ڈے پر کانفرنس، وزیر آبپاشی میاں یاور زمان کی خصوصی شرکت۔ ادھر تحریک انصاف کے زیر اہتمام ہاسپٹیلٹی ان ہوٹل میں سیمینار، عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ PTI پنجاب کے صدر اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کی شرکت۔ پنجاب آٹا نمبر 1 کی جانب سے ڈیلرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا، بہترین کارکردگی کے حامل ڈیلرز پر انعام کی بارش۔ ادھر یونائٹڈ آٹوز کمپنی نے ایکسٹریم 70cc موٹر سائیکل کا نیا ماڈل لانچ کر دیا۔ MD ثناء اللہ چودھری نے افتتاح کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آل پاکستان انگلش سٹوری رائٹنگ مقابلے، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء کی شرکت۔ ادھر قائد اعظم لاء کالج ماڈل ٹاؤن میں سالانہ تقریری مقابلے، سینئر وکلاء سمیت طلباء و طالبات کی شرکت۔ اسپرٹ اسکول اور ماڈرن ایج اسکول اینڈ کالج کے اشتراک سے اساتذہ کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ، امپاورمنٹ تھرو کوالٹی ایجوکیشن، انوویشن اینڈ پروڈکٹیوٹی پر لیکچر۔ ادھر ثریا اشفاق ماڈل گرلز ہائی اسکول کی سالانہ تقریب، نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹس اور میڈلز تقسیم۔
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 8वीं 3 रोज़ा वेक्सनेट 2014 नुमाइश, दूसरे रोज़ ख़वातीन ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ का चिड़ियाघर के 2 चीतों के घर बसाने का फैसला, मुल्की और गैर मुल्की इदारों से 2 माह दान लेपर्ड खरीदने के लिए 80 लाख रुपए की समरी वज़ीर आला को अरसाल। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत कतर और पाकिस्तान की 1 क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 मैच पीर के रोज कज़ाफी स्टेडियम में होगा। वजीर खेल राना मशहूद अहमद और DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर की नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस। आवरी क्वार्टरो कप इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट, नवीद शरीफ और आसिम टवाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट में अच्छा खेल पेश करने वाले यूरोप गोल्फ टूर में शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में कल्चरल कार्निवल, मुख्तलिफ बैंड्स में मुकाबले, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम। जश्न बहारा के सिलसिले में दुल्हन की तरह सजी केनाल को देखने के लिए शहरियों का रश, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। और सुर संगीत में साज नहीं आवाज का मोहताज, फोर्ट्रेस स्टेडियम में तुर्की के फौजी बैंड मेहतर और पाक आर्मी बैंड का मुश्तरका फन का मुजाहरा, मुख्तलिफ मिली नगमों की धुनें पेश की तरफ से फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में तुर्क फौज के बैंड मेहतर ने अस्करी और मिली नगमों की शानदार धुनें पेश की, जबकि जीवे जीवे पाकिस्तान मिली नगमे की धुन पेश करके समा बांध दिया। तकरीब का अहवाल जानते हैं वकास अहमद की इस रिपोर्ट में। बहादुरी और खुद मुख्तारी की अलामत सवर किए जाने वाले तुर्क फौजी बैंड मेहतर के एजाज में मुनक्किदा तकरीब का आगाज पाक फौज के 10 बलोच रेजिमेंट और 44 फ्रंटियर कोर की बैंड परफॉर्मेंस से हुआ। बारह 1299 में मार्ज वजूद में आने वाले तुर्क फौजी बैंड मेहतर ने मुख्तलिफ अस्करी और मिली नगमों की धुनें पेश की और मार्च पास किया, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने जिए पाकिस्तान बोला था, इसलिए बहुत अच्छी लगी। हमें तुर्की से प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि पाक तुर्क दोस्ती और मजबूत हुई है। ये इन्होंने काफ़ी इंटरटेन किया और इस तरह के शोज ज़रूर होने चाहिए यहाँ। टर्किश पाकिस्तान के कल्चर को जान रहे हैं थोड़ा सा, दैट्स वेरी ग्रेट। सबसे खास चीज़ ये है कि यहाँ पे वो जिस तरह से बजाते हैं और कितने वो जोश से गाते हैं इस तरह। फोर्ट्रेस स्टेडियम उस वक्त तालियों से गूंज उठा जब मेहतर बैंड ने मारूफ पाकिस्तानी मिली नगमे जीवे जीवे पाकिस्तान की धुन पेश कर हाजरीन के दिल गरमाते हुए भरपूर दाद समेटी। कायमकम कोर कमांडर लाहौर मेजर जनरल बिलाल अकबर तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि ब्रिगेडियर अल्लाह नवाज मल्क, तुर्क फौज के ब्रिगेडियर नजात तूना, पाक फौज के अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा समेत शहरी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तुर्क फौजी बैंड की फोर्ट्रेस स्टेडियम में शानदार परफॉर्मेंस से पाकिस्तान और तुर्की के माबैन सदियों से मुहित ताल्लुकात पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। कैमरामैन अंजम शहजाद और वसीम के साथ वकास अहमद, सिटी 42। यौम पाकिस्तान 23 मार्च के मौका पर मीनार पाकिस्तान से निकलने वाली रैली और दीगर तकरीबात के मौका पर 6 DSPs, 23 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 241 वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात होंगे। तकरीबात में पार्किंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इन इंतजाम की निगरानी SP सिटी राना शुजात और SP सदर महमूदुल हसन गिलानी करेंगे। जमातुल दावा के यौम पाकिस्तान के मौका पर आयाए नजरिया पाकिस्तान मार्च और जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। अमीर जमातुल दावा हाफिज मोहम्मद सईद की क़यादत में मीनार पाकिस्तान से शुरू होने वाली रैली GPO चौक पहुंचेगी, जहां जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जमातुल दावा की जानिब से नजरिया पाकिस्तान के फलसफे और अहमियत को उजागर करने के लिए 23 मार्च के मौका पर रैली और जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जमातुल दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद की क़यादत में रैली और जलसे में जमातुल दावा के कारकुनान समेत मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन और समाजी तंजीमों की नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार में मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में MNA परवेज मलिक, एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा, बार उहदेदारान और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक ने कहा कि 30 मार्च को पाकिस्तान बनाने का नजरिया मुस्लिम लीग की सोच थी। मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान बनाया और आज भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। तवानाई का बहरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को साबिका हुकूमत की जानिब से मिला।
الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں ترکش فوجی بینڈ مہتران نے یوم پاکستان کے حوالے سے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ جیوے جیوے پاکستان نغمے پر ترکش بینڈ کی پرفارمنس سے اسٹیڈیم میں موجود طلباء و طالبات سمیت سینکڑوں شرکاء پاک ترک دوستی کے خوشگوار احساس سے جھوم اٹھے۔ جمال الدین جمالی کی یہ رپورٹ دیکھتا ہے۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اور پنجاب آرٹس کونسل کے اشتراک سے الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں میوزیکل پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم و صحت رانا مشہود احمد خان پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ڈی جی سپورٹس عثمان انور، ترکش بریگیڈیئر جنرل نیڈیڈ ڈیونا، ترکش ڈیفنس اتاشی ونگ کمانڈر علی، کرنل چودھری عنایت اللہ سمیت پاک آرمی کے افسران اور جوان موجود تھے۔ ترکش بینڈ کی پرفارمنس اور میوزک پروگرام نے مختلف اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات سمیت دیگر شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل مصیبت آئی، وقت آیا تو ترک بھائیوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور وہ جو فیلنگز دونوں سائیڈوں پر موجود ہے اب ہم اس کو مزید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ترکش بریگیڈیئر جنرل نیڈیڈ ڈیونا، ترکش ڈیفنس اتاشی ونگ کمانڈر علی نے پاک ترک دوستی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ Your nations and our nations are from the history and nowadays and in the future eventually. It is our pleasure to be here to present our military songs here. مجھے لاہور پسند ہے. I love you Lahore. I love you Pakistan. Turkish and Pakistani people are like the brother. صوبائی وزیر رانا مشہود نے ترکش بریگیڈیئر جنرل نیڈیڈ ڈیونا کو شیلڈ پیش کی، جبکہ ترکش بریگیڈیئر جنرل کی جانب سے پنجاب حکومت سے جذبہ خیر سگالی کے اظہار کے لیے رانا مشہود کو شیلڈ پیش کی گئی۔ کیمرامین عدنان علی کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ موریشیس ہائی کمشنر عبدالراشد ڈیریائے نے اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کاٹیج انڈسٹری میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب محمد راشد کو صدر اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی جانب سے پی سی میں ظہرانہ دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ موریشیس ہائی کمشنر راشد دیریابو نے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر رانا محمد اقبال سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آل پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے نمائندگان بابر بٹ، شاہجہان خان، سید کلیم الرحمان شاہ، عمر بابر بٹ، ذکاء الحق اور خواجہ معین الدین بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ موریشیس ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا محمد اقبال نے مہمانوں کو ایوان کا دورہ کرایا اور اسمبلی کی کارکردگی سے آگاہ بھی کیا۔ دوسری جانب موریشیس ہائی کمشنر محمد راشد ڈیریابو کو صدر اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی جانب سے پی سی میں ظہرانہ دیا گیا۔ ظہرانے میں موریشیس کے اعزازی کونسل جنرل شاہد سیٹھی، عمر بٹ، سید کلیم الرحمان، گوگی شاہ، شاہجہان خان اور خواجہ معین الدین بھی موجود تھے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ لاہوریوں کے بارے میں جیسا سنا تھا انہیں اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ Lahore is a historical place. Nobody can deny that cultural, historical, great city which has a great future, which is the people is talking about sweet. They're kind, friendly. I haven't tasted them. I hope they are sweet, but I believe that there is good reason that we have kind, affectionate people here. ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ وہ فیملی کے ساتھ لاہور آ کر بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ لاہوری کھانے بھی اتنے ہی لذیذ ہیں جتنا لاہور والوں کا پیار۔ ایم پی اے سلما بٹ اور چودھری علی عدنان نے پاکستان میں تاجکستان کے سفیر کو فیملی اور ویلتھ سمیت پی سی میں ظہرانہ دیا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے مارکو پولو ریسٹورنٹ میں دیے جانے والے ظہرانے میں مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی سلما بٹ اور لیگی رہنما چودھری عدنان نے ظہرانہ دیا، جس میں تاجکستان کے سفیر شیرالی ایف جانان اور ان کی فیملی اور 27 افراد پر مشتمل وفد موجود تھا۔ اس موقع پر تاجکستان کے سفیر نے لاہور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے لوگ واقعی زندہ دل ہیں۔ Lahore, of course, it's different because you can see in Lahore harmony of cultures, difference of languages, so it's full of energy. Of course, being in Lahore also you may be also give some energy for your activity here.
ताजिक सफीर शेराली एस जानान ने अपनी फैमिली और वफ्द के हमरा वाघा बॉर्डर का दौरा किया। रेंजर के जवानों की परेड देखी और लाहौरियों के जज्बे को सराहा। रुकन सूबाई असम्बली सलमा भट्ट और लीगी कारकुन चौधरी अली अदनान की दावत पर लाहौर आए ताजिकिस्तान के सफीर शेराली एस जानान ने अपनी फैमिली समेत 27 रुकनी वफ्द के हमरा वाघा बॉर्डर का दौरा किया। वाघा बॉर्डर पर उन्होंने रेंजर्स के जवानों की परेड और परचम उतारने की तकरीब देखी। परेड में मौजूद ताजिकिस्तान के सफीर, उनकी फैमिली और वफ्द ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और रेंजर जवानों की परेड को अपने कैमरों की आंख से महफूज किया। कौमों के लिए उनकी यादगारें बहुत अजीज होती हैं और वो कौमी दिनों पर इन यादगारों से इजहार अकीदत के लिए जाते हैं, मगर यादगारें पाकिस्तान पर इस बरस यौम पाकिस्तान मनाना मुमकिन ही नहीं रहा। खारदार तारों में घिरे मीनार पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। 23 मार्च 1940 को इसी मैदान में एक अलग मुल्क के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे में करारदाद पास हुई थी। पाकिस्तान इसी करारदाद की बुनियाद पर मारज़े वजूद में आया। इस तारीखी करारदाद की बदौलत 1960 की दिहाई में मीनार पाकिस्तान की एक यादगार तख्लीक की गई। हमें लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए भी देखना है, इसके लिए हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हर साल 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान लाखों पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज बनता है। सयाह आते हैं, मगर इस बार लोगों के लिए इस इमारत तक पहुंचना खारदार तारों ने मुश्किल बना दिया है। हम मीनार पाकिस्तान देखने मतलब यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनवाने आए, तो यहाँ पे देखा कि हर्डर्स वगैरह, बैरियर्स वगैरह लगाए हैं। सिक्योरिटी वाले अंदर नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे हैं कि ये बंद। कहते हैं कि इस बार 23 मार्च को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये कौमी यादगार बंद रहेगी। यादगार को बंद करने के पीछे भी कौमी जज्बा ही कार फरमा होगा, मगर इसके बंद होने से लाखों लोगों के जज्बात को ठेस जरूर पहुंची है। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रजा खरल, सिटी 42। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और दिलखराश वाकया। सुंदर के इलाके में मालिक मकान ने सिर्फ घर जल्दी न आने पर बहीमाना तशद्दुद से 14 साला नजमा के बाजू तोड़ दिए और बेहोशी के आलम में उसके घर पहुंचा दिया। पुलिस ने मालिक और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। तशद्दुद के वाकये की तफसीलात जानते हैं असद साही की इस रिपोर्ट में। शफीकाबाद में एक कमरे के किराया के मकान में रहायश पजीर स्कीना बीबी की 5 बेटियां और एक बेटा है। 14 साल बड़ी बेटी नजमा सुंदर के इलाके में 3000 रुपए महाना पर मोहम्मद नासिर के घर 2 साल से बतौर मुलाजमा काम कर रही थी। स्कीना के मुताबिक मालिक मकान नासिर ने उसे फोन पर नजमा की तबीयत खराब होने की इतला दी। बेटी को लेने पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिससे उसके बाजू टूट गए थे और उसकी हालत भी गैर हो चुकी थी। स्कीना के मुताबिक मोहम्मद नासिर ने कहा कि ये सामने घर वाली खवातीन के पास बैठी रहती है, जिसकी वजह से उसको मारा पीटा है। बैरिया टाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। गरीब मां ने मोहल्लेदारों की मदद से बच्ची को म्यू अस्पताल दाखिल करवाया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नजमा के बाजू टूट चुके हैं और उसके सर समेत जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। सुंदर पुलिस ने घर के मालिक मोहम्मद नासिर और उसकी अहलिया उज़मा बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमा ने इल्जाम आयद किया कि मुतासरा लड़की नजमा कई दफा घर से भाग चुकी है और उन्हें शुबा है कि वो घर में कई दफा चोरी भी कर चुकी है। कुछ सच्चाई नहीं है, वो सारे नौकर मिले होते हैं आपस में, कुछ भी नहीं है। था सुंदर पुलिस ने मुलजम नासिर और उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO मलक मुबशर का कहना है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, तफसीली रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें एक उसकी जो कलाई की हड्डी है वो टूटी हुई है और इनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है। अभी इब्तदाई उन्होंने हमें दी है मेडिकल रिपोर्ट, फाइनल जो है वो कल मिलेगी हमें और हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा असद साई, सिटी 42। सरकारी मुलाजमीन की रिहायशी कॉलोनी वहदत कॉलोनी गुनागो मसाइल का शिकार। रिहायशी साफ पानी और साफ सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात को तरस गए हैं। इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो अफसरान की रिहायशी कॉलोनी GOR 1 पर मरकूज है। कैसर खोकर की ये रिपोर्ट देखता है।
वहादत कॉलोनी शहर की सबसे बड़ी सरकारी कॉलोनी है। यहाँ ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक के सरकारी मुलाजमीन को क्वार्टर्स अलाट होते हैं। सरकारी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ के रहायशी सरकार की तवज्जो से महरूम है। जगह जगह गंदगी के ढेर तौफन का बायस बन रहे हैं। खेलों के मैदान भी किसी फिल्म डिपो का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ के रहायशी GR1 में दस्तयाब 5 स्टार जैसी सहूलियात कारपेट रोड्स के मुतकाजी तो नहीं, ताहम इनका मुतालबा है कि इन्हें और इनके बच्चों को पीने का साफ पानी, सेहत अफजा माहौल और साफ सुथरी सड़कें फराहम की जाए ताकि वो भी पुरसकून जिंदगी गुजार सके। क्वार्टरों में गेट लगा हुआ जो वो टूटा हुआ है और यहाँ पे चोरियां टकटियां होती रहती हैं। सड़क कोई नहीं, उतो गंद पिया गेट से क्वार्टरां की बैक साइड से पैसे लैके अड्डे लवाए गए ने। कोई यहाँ पे SDO वगैरह कोई इंतजामिया यहाँ की कोई काम करने को तैयार ही नहीं। वहादत कॉलोनी में सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस चोरी और डकैती की वारदातें भी मामूल बन चुकी हैं। गरीब मुलाजमीन की कॉलोनी को शाराए आम बना दिया गया है। कॉलोनी के अतराफ तजावजात की बरमार है। कॉलोनी के रहायशियों का कहना है कि वो कई बार CNW के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रहायशियों ने शिकवा किया कि सरकारी मुलाजम होने के बावजूद इन्हें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। दूसरी जानब GR1 के तमाम मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद देखते हैं और महज एक कॉल पर CNW का मसला के हल के लिए मौका पर मौजूद होता है। रहायशियों का कहना है कि इनके सामने हमेशा बजट का रोना रोया जाता है, जबकि GR1 के सरकारी बंगलों पर सालाना लाखों रुपए महज तज़ीनो आराइश पर उड़ा दिए जाते हैं। वहादत कॉलोनी के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इन्हें भी सरकारी मुलाजम होने के नाते साफ पानी, सफाई और सिक्योरिटी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद रजवान के साथ कैसर खोकर, वहादत कॉलोनी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बगैर प्रोटोकॉल नून लीगी रहनुमा चौधरी सऊद मजीद की डिफेंस में वाक़ रहायशगाह बरामद, वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद गाड़ी चलाते हुए चौधरी सऊद मजीद की 500 ब्लॉक में वाक़ रहायशगाह पहुंचे। इस मौका पर चौधरी साद मसूद, गुलाम हुसैन शाहिद, सैयद सरफराज शाह और सरदार खालिद मलिक भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम चौधरी अब्दुल मजीद के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। आलमी मयार के तर्ज तामीर से हम आहंग लेक सिटी सोसाइटी में मकीनों की तफरीह तबाह के लिए फॉरेस्ट कैफे का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेक सिटी गौहर एजाज के हमरा बरतानिया के मारूफ बिजनेसमैन ख्वाजा अहमद हसन ने इफ्तिताह किया। 2013 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को शील्ड्स भी दी गईं। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट। मुल्क में मुनफरद नौइयत की तर्ज तामीर और सहूलतों के बायस कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली लेक सिटी हाउसिंग सोसाइटी में फॉरेस्ट कैफे की सूरत में एक और खूबसूरत इजाफा हुआ है। बरतानिया से आई मारूफ कारोबारी शख्सियत ख्वाजा अहमद हसन ने CEO लेक सिटी गौहर एजाज और साबिक चेयरमैन एप्टमा शहजाद अली खान और दीगर के हमरा फॉरेस्ट कैफे का इफ्तिताह किया। सूती आलूदगी से पाक और नेचर के करीब तर माहौल में बनाए गए कैफे में मिनी गोल्फ, चिड़ियाघर, प्ले लैंड एरिया और फुवारों की फुवार को लेक सिटी के मकीन खूब इंजॉय कर सकेंगे। चटपटे खाने भी लेक सिटी के रिहायशियों को दस्तयाब होंगे। बरतानिया से आए बिजनेसमैन ख्वाजा अहमद हसन भी तारीफ किए बगैर न रह सके। Very nice for the especially residence people. It's a very good environment, especially after working hours they can relax. And I would suggest all Pakistani overseas living in UK or anywhere to come along and visit the place and see personally. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौहर एजाज ने साल 2013 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लेक सिटी के अफसरान मुलाजमीन को तारीफी असनाद और शील्ड्स भी दी। गौहर एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि फेज 1 की कामयाबी के बाद लेक सिटी का मॉल प्रोजेक्ट भी ज़ेरे तामीर है, जिसमें सिनेमा की तामीर के साथ जरूरियात जिंदगी की तमाम इशिया लेक सिटी के रिहायशियों को फराहम की जाएंगी। दूसरा प्रोजेक्ट लेक सिटी मॉल का है, जो कि 2.5 लाख स्क्वायर फुट 250,000 स्क्वायर फीट की मॉल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरे ज़ोर शोर से। उसका पहला फेज सिनेमा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट एरिया के साथ इसी साल में जो है उसका इफ्तिताह हो जाएगा। फॉरेस्ट कैफे में आने वाले लेक सिटी के मकीन जहां कुदरती माहौल में बैठकर गोल्फ और लजीज खानों से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, वहीं बच्चे जंगल के बादशाह की हैबत और बंदर की शरारतों से महजूज भी हो सकेंगे। कैमरामैन वाजिद अली के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब आटा नंबर 1 की जानिब से डीलर्स की हौसला अफजाई के लिए डीलर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में डीलर्स पर इनामात की बारिश कर दी गई। अहवाल जानते हैं हसन अली सर।
सुप्रीम फ्लोर मिल्स मुल्तान रोड पर होने वाले डीलर्स कन्वेंशन में पंजाब आटा नंबर 1 के बानी और सुप्रीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हाजी मोहम्मद बशीर, डायरेक्टर खलीक अरशद, शेख इजाज हुसैन, मियां मोहम्मद शफीक, बिशारत खलीक, सलमान तारिक, यूसुफ फारूक, मियां यूसुफ, इजाज तनवीर, जफर इकबाल, मोहम्मद यासीन, रिजवान तारिक समेत मुल्क भर से आए हुए डीलरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब आटा नंबर 1 के बानी हाजी मोहम्मद बशीर का कहना था कि ईमानदारी, मेहनत, लगन और बेहतरीन टीम के बायस आज उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। अब तो बड़ा असूल है कि हालात अगर कमज़ोर भी हो जाए, ख़राब भी हो जाए, मगर नीयत फर्क कभी नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला है कि नहीं, मेरे उन अल्लाह का फजल है, इसलिए कई काम ने। सीजन ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर खलीक अरशद का कहना था कि पंजाब आटा नंबर 1 ने सार्फिन के साथ साथ अपने डीलर्स का भी हमेशा ख्याल रखा है। तकरीब के इनेकाद का मकसद डीलर्स की पंजाब आटा नंबर 1 को मार्केट में नंबर 1 बनाने के सिलसिले में कोशिशों को सराहना है। दुनिया के साथ साथ चलने के लिए वेब ब्रिज का सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट का सिस्टम, लेबॉर्ट्री के क़याम का सिस्टम, ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आटा नंबर 1 के पास इसका क्रेडिट है। तकरीब के इख्तिताम पर अहदाफ पूरे करने वाले डीलरों को इनामात से नवाजा गया, जबकि कुरानदाजी के जरिए भी शुरका को मुख्तलिफ तहफ़ दिए गए। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 8वीं 3 रोज़ा विक्सनेट 2014 नुमाइश के दूसरे रोज़ भी ख़वातीन ने स्टॉल्स में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। जौहर टाउन एक्सपो सेंटर में जुमे को शुरू होने वाली 8वीं विक्सनेट 2014 नुमाइश दूसरे रोज़ भी जारी रही, जिसमें ख़वातीन ने खुसूसी दिलचस्पी ली। 3 रोज़ा नुमाइश में मुल्क भर समेत 60 ममालिक की ख़वातीन ने मलबूसात, ज्वेलरी, कसीदाकारी, जड़ी बूटियाँ, हर्बल प्रोडक्ट समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स लगे। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं सादिया खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल सिस्टम के एनुअल डे का इनेकाद टाउनशिप में किया गया। इस मौके पर MNA वहीद आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल चेयरमैन मोहम्मद रशीद, प्रिंसिपल प्रिया हुसैन, असातिज़ा और वालिदैन समेत तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। काम को मुकर्रर वक्त पर करने का नाम पाबंदी वक्त है। दुनिया में ऐसे कोई शख्स कामयाब हो सकता है जो वक्त की कदर करता है। चेयरमैन मोहम्मद रशीद ने तलबा की काफियों को सराहा। बच्चे की हदोखाल और उसकी तरबियत का हिस्सा जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करने से जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी दोनों चीज़ें जो है वो उसकी मजबूत होती हैं। मेहमान खुसूसी वहीद आलम का कहना था कि तलबा की बेहतर तालीम और तरबियत और इनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह की तकरीबात का इनकाद ज़रूरी है। ये बच्चों की मजीद प्रमोशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो वो किरदार अदा करें, जो वो अचीवमेंट हासिल करें, उन्हें एक्नॉलेज किया जाए। तकरीब के दौरान इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा कराम को भी तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। तलबा तलबात और असातिज़ा कराम के एजाज़ में इस किस्म की तकरीबात मेयारी तालीम के फरोग में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन बिलाल जफर के हमरा सादिया खान, सिटी 42। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेली इदारे स्पिरिट स्कूल सिस्टम की जानिब से असातिज़ा को क्वालिटी एश्योरेंस से मुताल्लिक आगाही देने के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। 44L ब्लॉक गुलबर्ग 3 में होने वाली वर्कशॉप मॉडर्न एज स्कूल एंड कॉलेज मानसहरा के इश्तराक से मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर राना अदील, डायरेक्टर स्कूल्स ताहिर खुर्शीद, मिस उमेरा, मिस आतिका, मारिया जावेद, अस्मत ज़ारा और शहजाद जमील समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। सुरैया इशफाक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में जमात इस्लामी की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल फरीद अहमद पराशा ने सर्टिफिकेट्स और मेडल्स तकसीम किए। अलहमरा हॉल में मुनाकिद होने वाली तकरीब में जमात इस्लामी के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल फरीद अहमद पराशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ असलम सलीम, मोहम्मद रफीक, अरशद चौधरी, खलीक अहमद बट, चौधरी गुलजार अहमद और नदीम सरवर भी शरीक थे। फातिमा पब्लिक स्कूल शाहदरा की तरफ से नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। बच्चों ने फैंसी ड्रेस पहनकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अहवाल बता रहे हैं मियाँ वकास अपनी इस रिपोर्ट में। फातिमा पब्लिक स्कूल शाहदरा की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब तकसीम इनामात में मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर प्रिंसिपल चौधरी अब्बास, राजा अशफाक, असातिज़ा और तलबा व तालिबात भी कसीर तादाद में मौजूद थे। बच्चों ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक की तो हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके।
بچوں نے گانوں پر بھی خوبصورت انداز میں ڈانس کیا اور خوب داد وصول کی۔ مہمان خصوصی خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ بچوں کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کی تقاریب ضروری ہیں۔ چھوٹا یہ معمولی سا جو آپ کو شیلڈ نظر آتی ہے، یہ کسی بھی بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اب جب بچے کو اپریسیشن ملتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اگر ہمت کیا اور میں محنت کر کے میں نے اچھی پوزیشن لیا تو مجھے اتنی اپریسیشن ملی ہے، تو زیادہ محنت کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے تفریحی پروگرامز کا زیادہ سے زیادہ انعقاد ضروری ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ میاں وقاص، سٹی 42۔ IVIT پنجاب یونیورسٹی میں بینک آف پنجاب اور USEFP کے تعاون سے سالانہ جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کے مستقبل کی رہنمائی کے لیے 30 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ عامر ڈار کی یہ رپورٹ۔ IBIT کی گراؤنڈ میں ہونے والے اس جاب فیئر کا افتتاح VC پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر مجاہد کامران نے کیا، جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈاکٹر منصور سرور، شمائلہ گل سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر مجاہد کامران نے بھی سٹالز کا دورہ کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس جاب فیئر سے تمام طلباء اپنے بہتر مستقبل کی راہ بنا سکیں گے۔ Display of so many companies here, and I'm sure this day will be, as you will realize later on, that you will find that many of you will go into one or the other of these companies. جبکہ طلباء نے سٹی 42 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پسندیدہ اور مارکیٹ کی بہترین کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں اور انہیں نہ صرف بہت کچھ نیا پتہ چلا ہے بلکہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے بہت جگہ CVs ڈراپ کی ہیں، بہت زیادہ اچھی کمپنیز آئی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہے اور ہمارے کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے۔ اٹس اے گریٹ پلیٹ فارم ہیئر۔ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بینکس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو، اور ایسی کمپنیز آئی ہوئی ہیں جابس پرووائڈ کر رہی ہیں، اب مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ، IT سے ریلیٹڈ پلیٹ فارم ملتا ہے یہاں پہ ایک ہمیں، جسے ہم آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں انٹرنشپس میں بھی اور جابس میں بھی۔ فریش گریجویٹس ہیں آپ کے اور جو ماسٹرز ہیں ان کے لیے گڈ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ اپنی جاب مل سکتی ہے، ان کو انٹرنشپ کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ طلباء و طالبات نے مختلف کمپنیوں کے نمائندگان کے پاس اپنی CVs جمع کروائیں، جبکہ ان کے موقع پر انٹرویوز بھی کیے گئے۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ عامر ڈار، سٹی 42۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ہاسپٹیلٹی ان ہوٹل میں پانی کے عالمی دن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار کے حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پانی کے عالمی دن کے حوالے سے ہاسپٹیلٹی ان میں ہونے والے سیمینار میں PTI پنجاب کے صدر اعجاز احمد چودھری اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یاسمین راشد نے شرکت کی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید، MP میاں اسلم اقبال اور اندلیب عباس سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے پانی کی اہمیت اور اس کے درست استعمال کے حوالے سے آگاہی دی۔ اعجاز احمد چودھری نے کہا کہ زراعت میں پانی کا کردار بہت اہم ہے۔ مستقبل میں پانی کی قلت جیسے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں آج سے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ پانی کا اگر زندگی سے تعلق ہے تو ایگریکلچر بغیر پانی کے ہے ہی نہیں، اسی لیے جاوید نیاز مانج صاحب کا یہ سبجیکٹ ہے، وہ زراعت اور پانی کے اوپر یہ چوتھا سیمینار ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے صاف پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ پانی کی اہمیت ان کو زیادہ پتہ ہے جن کے پاس نہیں ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں یا ہم میں سے بہت سے دوست احباب شہروں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان سے پوچھے جن کے پاس نہیں ہے، ہم ان کے حصے کے پانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب میاں محمود الرشید نے اپنے خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا عوام کو صاف پانی کی سہولت مہیا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے۔ ڈے بائی ڈے پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ انسانوں سمیت ہر قسم کے جانداروں کی بقا کے لیے پانی کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان آج کل پانی کی قلت سے دوچار ہے۔ PTI کی جانب سے اس اہم مسئلے کو اجاگر کیا جانا خوش آئند ہے۔ کیمرہ مین عدنان بٹ کے ساتھ وقاص زیدی، سٹی 42۔ قائد اعظم لاء کالج ماڈل ٹاؤن میں سالانہ تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی مزاحیہ تقاریر نے تقریب کو کشت زعفران بنا دیا۔ تقریری مقابلوں میں سینئر وکلاء سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ طلباء و طالبات نے اردو اور انگریزی میں مختلف عنوانات پر تقاریر کی، جبکہ مزاحیہ تقاریر بھی پیش کی گئیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر کالج چودھری محمد سلیم نے خصوصی شرکت کی۔
प्रिंसिपल नसीर मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए तकारीर में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। क्वार्टर कप इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में नवीद शरीफ और आसिम टवाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डिफेंस रॉयल क्लब में मुनाकिज होने वाले एक रोजा इवेंट में मुल्क भर से 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने शिरकत की। नवीद शरीफ और आसिम टवाना ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करके कामयाबी हासिल की और दुबई में खेले जाने वाले आउडी क्वार्टर इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट खेलने के लिए क्वालिफाई किया। नवीद शरीफ और आसिम टवाना रवा साल 7 से 11 दिसंबर तक दुबई में खेली जाने वाली चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत कतर और पाकिस्तान ए क्रिकेट टीमों के माबैन T20 मैच पीर के रोज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौरियों को ये मैच मुफ्त देखने को मिलेगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस में वजीर खेल राना मशहूद अहमद ने डीजी स्पोर्ट्स पंजाब उस्मान अनवर और क्रिकेट बोर्ड के GM डोमेस्टिक शफीक अहमद पापा ने साफियों को ब्रीफिंग दी। राना मशहूद का कहना था कि श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद ये पहला मौका है कि कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मैच खेलेगी, जो मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का नुक्ता आगाज साबित होगा। कतर की टीम जो है वो पहला मैच अपना यहाँ पर पाकिस्तान ए टीम के साथ कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। इस मौके पर GM डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शफीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ए और कतर के मबैन मैच के मौके पर सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच की तर्ज पर किए जाएंगे, जबकि पाकिस्तान ए टीम का ऐलान इतवार को सिलेक्टर्स की मुशावरत से किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मुमताज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हम इसमें उनको अंपायर्स, रेफरीज, ग्राउंड की मैनेजमेंट और लंच, टीज वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको टैकल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में यूथ फेस्टिवल के तहत इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हब्स में ताज़ा हवा का झोंका है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बात।